بچہ عطا فرمایا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیابان جنگل میں ان کی والدہ کے ساتھ میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بیابان جنگل میں اکیلے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں چرند و پرند نہیں ہے، وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی وہاں نظر آنے والا نہیں ہے، ایسے جنگل میں آپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چند کھجوریں آپ کے پاس موجود ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے حضرت حاجرہ کے پاس تھوڑا سا پانی موجود ہے، وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے میں پانی تلاش کرتی رہتی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے کہیں پانی نظر آ جائے، میرے بیٹے کے لیے کہیں پانی مل جائے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ مبارک و مقدس مہینہ ہے جس کے تعلق سے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہم اور آپ آج عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنت ابراہیمی کو آج ہم اور آپ عمل میں لاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنت ابراہیمی پر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جگہ جگہ پر اپنے اپنے حساب سے لوگ قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جسے اللہ رب العزت نے اتنی مال عطا فرمایا ہے، اتنی دولت عطا فرمائی ہے، ان لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن قربانی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قربانی کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ قربانی ہمیں کرنی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ خریدنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے اندر گوشت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا مال اس کے اندر موجود ہے، کتنا گوشت اس کے اندر موجود ہے، بولے اتنا تو آ جائے ہمارے حصے میں کہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیں۔ اے میرے بھائی، حصے کے لیے قربانی نہ کر، تو گوشت کے لیے قربانی نہ کر، تو بوٹیوں کے لیے قربانی نہ کر، پیٹ بھرنے کے لیے قربانی نہ کر۔ اگر تو یہ قربانی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کر۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ رب کی رضا کے لیے قربانی کم کر رہے ہیں، بلکہ لوگ گوشت کھانے کی نیت سے کر رہے ہیں، لوگ دکھاوے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، تمہارے اوپر جب قربانی واجب ہے تو تجھے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اوپر جب قربانی واجب ہے تو یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی جب تیرے اوپر واجب ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیجیے۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہی ہے، تمہاری جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ قربانی تمہارے اوپر واجب ہو چکی ہے، آپ کو قربانی کرنی چاہیے، وہ تمام طرح کے بہانے لیتا ہوا نظر آتا ہے، تمام طرح کی باتیں سناتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے اوپر واجب ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا سونا نہیں ہے، میرے پاس اتنی چاندی نہیں ہے۔ تیرے پاس مال تو بہت ہے لیکن تو اسے گنتی میں لاتا کب ہے؟ تیرے پاس دولت تو بہت ہے، تو اسے شمار کرانا کب چاہتا ہے؟ ایسے موقع پہ شمار نہیں کراتا۔ اگر کوئی یہ کہتے کہ تو بہت غریب ہے، کوئی یہ کہتے کہ تیرے پاس ہے ہی کیا، تو اسے تمام پلاٹ گنانا شروع کرتا ہے، اپنے مکان گنانے شروع کرتا ہے، اپنا پیسہ گنوانا شروع کرتا ہے، اپنا کاروبار بتانا شروع کرتا ہے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب کہیں دینے کی بات آتی ہے، جب کہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے دین پر، تو کہنے لگتا ہے مجھ پر واجب نہیں ہے۔ کہ زکات دینے کی بات آتی ہے، وہ کہنے لگتا ہے مجھ پر فرض نہیں ہے۔ ایسے موقع پر تو تمام غریب بن کر دکھاتا ہے۔ اے میرے بھائی، غریب وہ ہے جن لوگوں کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، غریب وہ ہے جن کے ہاں ہفتوں گوشت نہیں بنتا ہے، غریب وہ ہے جن کے ہاں مہینوں گوشت نہیں بنتا ہے۔ اے میرے بھائی، غریب وہ ہے جنہیں بوٹیاں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی، غریب وہ ہے جنہیں گوشت دیکھنے کے لیے نصیب نہیں ہوتا، غریب وہ ہے جن کے یہاں گوشت نہیں آیا کرتا ہے۔ اے میرے بھائی، تو غریب کب ہے؟ اللہ رب العزت نے تجھے اتنی دولت عطا فرمائی ہے تو تجھے قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہم اس قربانی کو کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر، جو اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی دعاؤں کے بعد میں، بڑی تمناؤں کے بعد میں، بڑی التجا کے بعد میں رب سے مانگا تھا، مولا پروردگار عالم مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اتنی نیک و صالح اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم
फरमाता है इब्राहिम मेरी राह में वो कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात ख्वाब आता है आपने 200 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात ख्वाब आता है आप सुबह उठते हैं और अपने बेटे लगते जिगर नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं बेटा ए मेरे बेटे ए मेरे लगते जिगर ए नूरे नजर ए मेरे दिल के सुकून ए मेरे दिल के चैन एक बात बतानी थी। आपने अर्ज किया आपने ये फरमाया ए मेरे बेटे एक बात तुमसे करनी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से यूं फरमाया बेटे एक बात तो हमारी सुन लीजिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में अर्ज करते हैं वालिद मोहतरम हुक्म फरमाइए आप क्या फरमाना चाहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए मेरे लगते जिगर नूरे नज़र ए मेरे बेटे तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है। ख्वाब में रब तबारक व तआला तुम्हारी कुर्बानी चाह रहा है। रब का हुक्म है कि मेरी राह में वो कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है जो सबसे ज्यादा प्यारी है जो सबसे ज्यादा महबूब है। तुम मेरी राह में वो कुर्बान करो। मैं समझ गया कि मेरा परवरदिगार आलम मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की वालिद मोहतरम अगर रब मेरी कुर्बानी चाहता है तो आप बिल्कुल खुशी खुशी रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने बेटे लगते जिगर नूरे नज़र अपने बेटे को आप कुर्बान कर दीजिए। आपका बेटा आपका लगते जिगर आपका नूरे नज़र बिल्कुल भी उफ करने वाला नहीं है बल्कि अपने बेटे को आप साबिर पाओगे। आपका बेटा वहां सब्र वाला आपको नसीब होगा कि तुम्हारा बेटा वाकई में साबिर है। आपका बेटा बिल्कुल तैयार है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से यूं अर्ज नहीं किया है। आपने यूं नहीं फरमाया कि मैं आपकी बात को कैसे मान लूं कि आपने ख्वाब देखा है। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम्हारे ख्वाब में ये आ गया है कि रब मेरी कुर्बानी चाह रहा है। आपके पास दलील क्या है। कोई सवाल नहीं फरमाया बल्कि यूं फरमाया अगर रब चाहता है तो आप अपने बेटे को बिल्कुल कुर्बान कर दीजिए और अपने बेटे को आप साबिर पाओगे। कोई दलील नहीं तो मैं कैसे मान लूं आपके ख्वाब है। मैं कैसे मान लूं ख्वाब है कि आप रब तबारक व तआला मेरी कुर्बानी चाहता है। आपने यूं नहीं फरमाया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वालिद मोहतरम की बात पर लब्बैक कहते हुए ये नजर आते हैं कि अपने बेटे को साबिर पाओगे। उस वक्त में अल्लाह अकबर रब तबारक व तआला ने कितनी नेक औलाद आपको अता फरमाई है जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे अपने लगते जिगर नूरे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से तशरीफ लेकर निकलते हैं। आप पता चलता है हाथ में रस्सी लेते हैं एक हाथ में छुरी छुपा लेते हैं अपने बेटे को साथ साथ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर ये शैतान मरदूद रहीन के पेट में जब दर्द होता है ये हजरत हाजरा को बहकाने के लिए जाता है लेकिन हजरत हाजरा को तू बहका नहीं सकता उनके ऊपर तेरा वार चल नहीं सकता तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि इधर रब है उधर रब कदीर है इधर उसका खलील है। पता ये चलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस इम्तिहान में रब की बारगाह में कबूल हो जाती अपने उस इम्तिहान में कामयाब होते हुए नजर आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज हम सुन्नत इब्राहिमी पर आज अमल करते हुए नजर आते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे लगते जिगर नूरे नज़र की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने अपने बेटे को उस जुए जमीन पर लिटा दिया उस पत्थर के ऊपर लिटा देते हैं और लिटाने के बाद में छुरी को चलाते हैं। छुरी चलने के लिए तैयार नहीं है। ये छुरी का चल भी कैसे जाती क्योंकि छुरी को रब का हुक्म हो गया था ये छुरी हजरत इस्माइल की गर्दन पे तुझे चलना नहीं है। अल्लाह अकबर तभी तो तबारक व तआला ने उस छुरी को ज़बान अता फरमाई उस छुरी को कुव्वत अता फरमाई। छुरी से आवाज आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए छुरी ये तो बता तू बड़ी तेज धार वाली है तेरा काम काटने का है तू तो काटती हुई नजर आती है। मैंने जब तुझे पत्थर पे मारा तूने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और मेरे बेटे हजरत इस्माइल का तो गला बड़ा नरम और नाजुक है इतना नरम और नाजुक गले पर तू चलने के लिए तैयार नहीं है तू काटने के लिए तैयार नहीं है। तो यही छुरी बोलती हुई नजर आई थी अल्लाह के खलील ये तो बता दीजिए जब आपको उस आग में डाला गया था नारे नमरूद में डाला गया था उस आग का काम क्या था। आग का काम होता है जलाने का लेकिन उस आग ने आपको जलाया नहीं। उसकी वजह क्या है वो आग ठंडी और सलामती हो जाती है आपके लिए गुले गुलजार बन जाती है। वो आग क्यों नहीं जलाती
आती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुन, उस आग को रब का हुक्म हो गया था इब्राहिम के हक में ठंडी और सलामती हो जा। पता ये लगता है कुल्ला या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग हजरत इब्राहिम के हक में ठंडी और सलामती हो जा। रब के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती हो गई थी। चुरी ने अर्ज की, ए अल्लाह के खलील सुन, उस आग को रब ने एक मर्तबा हुक्म दिया था कि मेरे खलील को जलाना मत, मेरे खलील को तकलीफ पहुंचाना मत, लेकिन सुन ले, मुझे रब ने एक मर्तबा नहीं बल्कि 70 मर्तबा हुक्म फरमाया है कि इस्माइल के गर्दन को काटना नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को काटना नहीं। अब ये बता दीजिए, जब रब का हुक्म हो गया है तो मैं कैसे चलने के लिए तैयार हूं। उसी जगह पर हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, दुम्बा ला करके रख देते हैं, दुम्बा जीवा हो जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं। पता ये चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परवरदिगार आलम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। और वहां दुम्बा जिबा हो गया। लोगों का सवाल यह भी था कि दुम्बे के गोश्त का क्या हुआ है। दुम्बे के गोश्त का ये हुआ है, सुन लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुम्बे के गोश्त का उस वक्त में क्या हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वह हजरत तशरीफ लेकर आते हैं। दुम्बे को वहीं छोड़ दिया जाता है, दुम्बा वहीं जिबा हुआ वहीं पड़ा रहता है। जिस दुम्बे को वहां जिबा किया गया था उसको वहीं छोड़कर आ जाते हैं। और जब वहां से रवाना होते हैं तो उस मैदान में दरिंदों ने आकर के उस दुम्बे के गोश्त को खा लिया था। लेकिन आज ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है हमारे और आपके ऊपर कि हम और आप जानवरों की कुर्बानी करते हैं और उससे गोश्त को खाने की भी इजाजत दे दी गई है? उसके गोश्त को भी खाने की इजाजत मिल गई है कि आप दुम्बे की कुर्बानी करें, या आप ऊंट की कुर्बानी करें, या आप बकरे की कुर्बानी करें, या आप कटरे की कुर्बानी करें। उसके गोश्त को फेंक कर नहीं आए, उसके गोश्त को वहां छोड़कर नहीं आए, बल्कि उसको आप खा सकते हैं, उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल में इस तरह से लाते हैं कि लोग फ्रीजों के अंदर रखते हैं, उसका स्टोर कर देते हैं और इतना स्टोर करते हैं, इतना लंबा स्टोर होता है कि हफ्तों के हिसाब से खा रहे हैं, महीने के हिसाब से खा रहे हैं। और कुछ जगहों तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने में जब मैं एक जगह बयान करने के लिए गया, जब मैं एक तकरीर में गया हुआ था कि वहां पर प्रोग्राम है, आज मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से एक जलसे का प्रोग्राम है। मैंने मालूम किया कि तबर्रुक में मंगाया है, तबर्रुक का क्या इंतजाम है। वो कहने लगे, हजरत हमने 5 जगह हलीम के तैयार करा दिए हैं। और भाई बहुत बड़ा काम किया है, आप बहुत बड़ा लंगर लुटा रहे हैं, हुसैन के नाम पे आप दीवाने हैं, हुसैन के नाम पर इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, हुसैन के नाम पर 5 जगह हलीम की बनाई है, बड़ा गोश्त खरीदा होगा। वो कहने लगा, हजरत एक बोटी खरीद कर नहीं लाया। अरे फिर क्या डालेगा उसमें? अरे मेरे भाई क्या डालेगा हलीम में? बोले हजरत मैंने जो कुर्बानी की थी ना, उसी के गोश्त को मैंने उठाकर फ्रीज में रख दिया था और वही कुर्बानी का गोश्त मैं मुहर्रम के खिचड़े में डालता हूं। मुहर्रम तक कुर्बानी के गोश्त को चला रहा। तुझे अगर इजाजत मिल गई है कि कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हो, कुर्बानी के गोश्त को खा सकते हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि मुहर्रम तक चला रहे हो, उसे सफर तक चला रहे हो, उस गोश्त को रबीउल अव्वल तक चला रहे हो। ये गोश्त तो वाकई बहुत अच्छा है, ये गोश्त बहुत अच्छा है, बहुत लजीज है। इसकी वजह ये है कि इस गोश्त को अल्लाह के रसूल ने भी इस्तेमाल किया है, अल्लाह के नबी ने भी पसंद फरमाया है, मेरे आका ने भी खाया है, हमारे नबी ने भी खाया है, मेरे नबी भी इस गोश्त को कुर्बानी के वो पसंद फरमाते। लेकिन मेरे भाई, कुर्बानी के गोश्त को अकेला मत खा। तूने कुर्बानी की है तो तेरे ऊपर किसी और का भी हक बनता है, तेरे ऊपर किसी और का भी हक है, किसी और का भी फरीजा तेरे ऊपर है। सुन मेरी बात को, मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के यहां कुर्बानी नहीं हो रही, जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है, जिन गरीबों के यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही है, उनका भी हक तेरे ऊपर बनता है कि उन गरीबों के यहाँ पर गोश्त पहुंचा के आ, उन गरीबों के यहाँ पर गोश्त देकर आ। और अल्लाह ने तुझे इतना दिया है तो उनसे ये भी मालूम कर ले, इस गोश्त को बनाने के लिए तेरे घर में पैसे इतने हैं या नहीं जो तुम मसाले ला करके इसे बनाकर खा सकता है। अगर तुम चाहो और सूफिया का तरीका भी यही है कि गोश्त के साथ साथ उन्हें थोड़े से पैसे भी दे दिए जाए ताकि वो मसाले